Now we are going to do Lang's formula. What is Lang's formula? Lang's formula is the relation between focal length and object and image distances from the optical center. Now we are going to derive that. This is Lang's formula. This is the diagram that I have made. This is the object. AB is the object and A dash B dash is the image that is formed here. For a convex lens, this is the convex lens. For a convex lens, there are two cases. One is for real image and one is for virtual image. But right now we are going to do the case of real image. So real image is formed for a convex lens whenever the object is placed beyond the focal length. यहाँ पर जो फोकल लेंथ हमारी कुछ यहाँ पर होगी तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकल लेंथ रखा है तो इसलिए हमारे पास जो इमेज बन रही है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड आल्सो मैग्नीफाइड. So we are going to derive this formula. So about this formula, what I mean, relation between U, V and F. V is the image distance, U is the object distance, F is the focal length. So where are these distances? This is our focal length, this is our image distance V, and this is our object distance U. So for a lens formula, what I need is a relation. It is a relation, so I want to get a relation between all these three things, V, U and F. So let us start now. To get this relation, we will need some geometry here. So taking triangle ABC and A dash B dash C, we are going to prove that these triangles are similar. So how are we going to do that? In triangle ABC and triangle A dash B dash C, this two angles are equal because these two are 90 degree, both are 90 degree. Okay. A dash B dash C and ABC, these two angles are vertically opposite. So angle C is equal to angle C. So we have got two angles which are equal from these two triangles. So these two triangles are similar now. Triangle ABC is similar to triangle A dash B dash C. Now I can get some relation from it. What is the relation? AB upon BC is equal to A dash B dash upon B dash C. यहाँ से हमें ये रिलेशन मिली है, इसका यूज करेंगे. बट एक रिलेशन से काम नहीं चलने वाला है. क्यों? हमें यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर AB upon BC is equal to A dash B dash upon B dash C मिला है. इसको रीअरेंज करते हैं. AB upon A dash B dash BC upon B dash C. So यहाँ पर BC है. BC is our object distance U. I needed that. And B dash C, this is image distance. I needed that. तो हमें दो चीज मिल गई बट हमें F नहीं मिला, तो हमें और कुछ भी करना पड़ेगा. तो we need another triangle so that I can prove them similar और कुछ और रिलेशन भी आ सके. तो यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल्स लेते हैं. ट्रायंगल्स हम लेते हैं यहाँ पर A dash B dash F एंड दूसरा क्या है C D F ले लेते हैं. ट्रायंगल A dash B dash F एंड C D F नहीं लिख सकते हैं. कारण क्या है कि हमें इस तरीके से लिखना होता है so that जो एंगल है उनकी मैचिंग होनी चाहिए. यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि B dash पे 90 आता है, यहाँ पर C पे 90 आता है. तो यहाँ पर बीच में B dash है तो मुझे C भी बीच में लिखना पड़ेगा. सो यहाँ पर हम लिखेंगे D, C एंड F. F दोनों में लास्ट में है और यहाँ पर एंगल्स भी ये वर्टिकली ऑपोजिट होने वाले हैं. तो बेटर है इनको एक पोजीशन पे लिखा जाए सो दैट हमारी जो रिलेशन आएगी उसमें कोई गलती ना हो. तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं हमने. एंड इन दिस ट्रायंगल एंगल F is equal to angle F. एंगल F is equal to angle F. ये यहाँ पर हमारे पास A dash B dash F में ये एंगल और C D C F में
ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो ये दोनों एंगल इक्वल है एंड आल्सो b डैश इज इक्वल टू c, एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास फिर से क्या आ गया, दो ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है, तो इस वजह से हमारे ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हो गए। These triangles are similar. Now सिमिलर हो गए तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे लास्ट हमने यहाँ पर किया था, रिलेशन फाइंड आउट की थी, रेशियो ली थी, रेशियो ऑफ द साइड। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, जैसे a डैश b डैश अपॉन dc इज इक्वल टू b डैश f अपॉन cf। तो यही क्यों लेते हैं, क्योंकि b डैश f और cf देखें तो cf इज आवर रिक्वायरमेंट। तो पिछले रिलेशन में हमारे पास u आ गया था, v आ गया था, बट f हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, f की रिक्वायरमेंट थी, तो अब f यहां से आएगा। तो हम इसको dc को देखें एक बार, dc over this height and this is equal to ab, so we can replace dc by ab। a dash b dash upon ab is equal to b dash f upon cf। यहाँ पर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यहाँ पर AB अपॉन A डैश B डैश है, यहाँ पर A डैश अपॉन A डैश B डैश अपॉन AB है, तो इनको उल्टा कर देंगे सो दैट हम मैचिंग कर सकें। इन दोनों इक्वेशन का हम यूज करने वाले हैं, तो CF अपॉन B डैश F हो जाएगा। सो नाउ दिस इक्वेशन यू कैन टेक इट एज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन एज सेकंड। अब इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रखेंगे। फ्रॉम हियर वी विल व्हाट वी विल गेट इज दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आगे करते हैं। We can write BC upon B dash C is equal to CF upon B dash F from our first and second equation. So what was BC? एक बार फिर से देखते हैं डायग्राम में। BC क्या था? A B C D यहाँ पर B डैश A डैश F C। ओके, यहाँ पर BC है, BC इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ पर माइनस u लेंगे बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन। व्हाट अबाउट B डैश C, उसको पॉजिटिव लेंगे बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन, इट इज ऑन द राइट साइड, सो इसको पॉजिटिव भी लेंगे। व्हाट अबाउट CF, CF इज आल्सो ऑन द राइट साइड, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, CF को हम लिखेंगे प्लस F। व्हाट अबाउट B डैश F, B डैश F दिस इज दिस क्वांटिटी, B डैश F को लिख सकते हैं हम B डैश C माइनस CF, B डैश C माइनस CF, सो दिस इज इक्वल टू B माइनस F। सो हमारे पास जितनी क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है, जितने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, सारे वैल्यूज हमें मिल गई हैं। BC की वैल्यू है, B डैश C की वैल्यू है, CF की वैल्यू है, B डैश F की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम इनको पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास माइनस u हो गया, ये V, ये हमारा CF F हो गया, B डैश F की वैल्यू B माइनस F होगी। Now cross multiplying this, what we will get, minus uv minus this is plus minus u minus f, this will be plus uf and this is vf। तो हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन आ गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, what we will do is यहाँ पर हम uvf से डिवाइड कर देंगे। uvf से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस uv अपॉन uvf
पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, पूरी लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड को, तो तीनों टर्म्स के नीचे हमारे पास UVF आने वाला है, UVF VF अपॉन UVF। सो यहाँ पर UV कट गया, यहाँ पर U एंड F कट गया, यहाँ पर V एंड F कट गया। तो हमें यहाँ क्या मिलता है, 1 by F plus 1 by V is equal to 1 by U, and rearranging this what we will get, इसको इधर ले जाते हैं और इसको यहाँ पर, तो 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, and this is our length formula। So हमें यहाँ पर हमारी फाइनल रिलेशन मिल गई है जो हमें रिक्वायरमेंट थी। This is our length formula for the real image for a convex lens। Thank you।